السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد صابر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جینیس اردو۔ تو دوستوں، اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ جانا تھا کہ اردو قواعد کیا چیز ہے، اور یہ بھی جانا تھا کہ اردو کس کو کہتے ہیں، اردو زبان کیا ہے، اور قواعد کیا چیز ہے، قواعد کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اردو قواعد کس پرکار کے ہوتے ہیں، کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، اور اردو قواعد کی کتنی قسمیں ہوتی ہے۔ اب آج باری باری سے ہم ان جو 5 قسمیں ہیں، 5 اقسام ہیں اردو قواعد کے، ان 5 اقساموں میں سے باری باری سے ایک ایک کر کے ہم کیا ہے سمجھیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے۔ ایک بات دھیان میں رکھیے گا کہ اگر آپ اس 5 اقسام کو اچھی طریقے سے یاد کر لیتے ہیں اور اس پر اچھی طریقے سے آپ پکڑ بنا لیتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اردو بولنے میں کوئی ٹکر نہیں دے سکتا ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا چیلنج ہے کہ آپ ان 5 اقسام پہ اگر کمانڈ کر لیتے ہیں، اگر پکڑ بنا لیتے ہیں، تو آپ کو کوئی اردو بولنے میں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ تو چلیے یہ کوشش کیجئے کہ ہم جتنی بھی اس 5 اقسام میں سے جتنی بھی پڑھتے جائیں، باری باری سے اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کرتے جائیں۔ تو چلیے بنا دیر کیے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اردو قواعد، ٹھیک۔ اب اردو قواعد یہ پارٹ نمبر 2 ہے۔ اب اردو قواعد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو 5 قسمیں ہیں۔ ان 5 میں سے یہاں پہ لکھا گیا ہے، یہ جو لکیر کھینچا گیا ہے، یہ تیر کا نشان، یہ 5 تیر کا نشان ہے، اور 5 تیروں کے سامنے ایک ایک قسم کو لکھا گیا ہے، ٹھیک۔ تو چلیے اب اس کو ہم لوگ جو ہے پڑھتے ہیں کہ کون کون سے اقسام ہے۔ تو اردو قواعد کے 5 جو اقسام ہیں، اس میں سے سب سے پہلا قسم جو ہے علم ہجا یا املا، یعنی دونوں میں سے ایک کہیے، علم ہجا کہہ دیجئے یا صرف علم املا کہہ دیجئے، ٹھیک۔ یہ پہلی قسم ہو گئی۔ پھر دوسری قسم ہے علم صرف، تیسری قسم ہے علم نحو، اور چوتھی قسم ہے علم بلاغت، اور 5ویں قسم ہے علم عروض۔ اب باری باری سے جو ہے ایک ایک کر کے ان کی تعریفیں اور ان کی تفصیل اور ان کو کیا کیا کہتے ہیں، بالکل تفصیل کے ساتھ جو ہے ہم لوگ سمجھیں گے۔ تو چلیے ہم جو ہے سب سے پہلے علم ہجا کو ہم جانتے ہیں۔ نمبر 1 میں جو دیا ہے علم ہجا، وہ علم ہے جس میں حروف تہجی، ان کے رسم الخط اور مخرج سے بحث کی جاتی ہے، ٹھیک۔ علم ہجا کہتے ہیں وہ علم ہے جس میں حروف تہجی، ان کے رسم الخط اور مخرج سے بحث کی جاتی ہے۔ اب اس میں دھیان رکھیے گا کہ اس میں 3 جز ہیں، 3 حصے ہیں۔ یہ جو تعریف کیا گیا ہے اس میں 3 حصہ ہے۔ ایک تو ہے حروف تہجی، دوسرا رسم الخط، اور تیسرا مخرج۔ اب ان تینوں کو الگ الگ سمجھتے ہیں۔ حروف تہجی کہتے کس کو ہیں؟ تو حروف تہجی کہتے ہیں کہ وہ حروف جن کو ملانے کے بعد ایک لفظ تیار ہوتا ہے۔ اب حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ حروف تہجی کی تعداد جو ہے وہ کل کے کل جو ہے 36 حروف ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ حروف تہجی کی 2 قسمیں ہیں، ایک مفرد حروف تہجی اور دوسرا مرکب حروف تہجی۔ مفرد حروف تہجی کہتے ہیں وہ حرف جو بالکل ایک ہو، اکیلا ہو، اس کے ساتھ دوسرا کوئی حرف نہ ملا ہوا ہو۔ اور مرکب حروف تہجی کہتے ہیں کہ وہ حروف تہجی جس کے ساتھ دوسرا کوئی حرف مل کر کے ایک حرف بن گیا ہو، اس کو مرکب حروف تہجی کہتے ہیں، ٹھیک۔
समझ में आ गई बस। तो हुरूफ तहजी अब समझ लिए। अब दूसरा जो है ये रस्मुल ख़त है। अब रस्मुल ख़त किसको कहते हैं? तो रस्मुल ख़त जो है इल्म हिज्जा के अंदर जो है हुरूफ को किस तरीके से लिखा जाता है, हुरूफ की शक्ल क्या होती है, कैसा शक्ल होता है हुरूफ की, उस सब हुरूफ की अलग अलग शक्ल को बयान किया जाता है और बहस की जाती है इस इल्म हिज्जा के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे हम जो है अगर हमको जीम लिखना है, अगर हमको जीम लिखना है तो जीम की शक्ल किस तरीके से होती है? देखिए ये जीम की शक्ल हो गई, ठीक। अगर अलिफ लिखना है तो अलिफ की शक्ल ये हो गई। अगर बे लिखना है तो बे की शक्ल इस तरीके से हो गई, ठीक। तो ये जो है बे की शक्ल जो है ये लंबा वाला, और ये जीम की शक्ल जो ये गोल है, और अलिफ की शक्ल जो है बिल्कुल लाठी की तरह खड़ा है, इसी को कहते हैं रस्मुल ख़त, यानी लिखने की शक्ल सूरत। तो इस इल्म हिज्जा के अंदर हुरूफ तहज्जी के बारे में बताया जाता है कि हुरूफ तहज्जी की कितनी किस्में हैं, हुरूफ तहज्जी क्या है, और उसके साथ उसकी लिखावट किस तरीके से होती है। और फिर अब जो है तीसरी बहस इसमें इल्म हिज्जा के अंदर ये होती है मखरज के बारे में, यानी जितने भी हुरूफ तहज्जी है उनको अदा करने का तरीका क्या है, किस तरीके से अदा किया जाता है। तो सबसे पहली बात ये समझ ले कि मखरज कहते किसको हैं। तो मखरज कहते हैं कि हुरूफ तहज्जी को अदा करने की जगह, यानी जिस जगह से हुरूफ तहज्जी को निकाला जाता है, अदा किया जाता है, उस जगह को मखरज बोला जाता है, उस जगह को मखरज बोला जाता है, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब समझते हैं कि हुरूफ तहज्जी के मखरज कितने हैं, यानी पूरे जो हुरूफ तहज्जी जो 36 हैं उन हुरूफ को निकलने की जगह कितनी है। तो उन हुरूफ की निकलने की जगह 4 है। कितनी है? 4 है, ठीक। नंबर 1 में है हलक, यानी ये हलक के जरिए कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो इस हलक के जरिए निकाला जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आइन, आइन, आइन कहेंगे तो यहाँ से गर्दन से हलक से निकालना होगा, आइन और वाइन वगैरह। दूसरी जगह हुरूफ तहज्जी को निकालने की दूसरी जगह है तालु। तालु कहते हैं जो ये ऊपर वाला दांत है, वो दांत के अंदर वाला जो हिस्सा है, अंदर जो बिल्कुल गोला है, खाली जगह जो है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। फिर कुछ ऐसे हुरूफ है जो इस जगह से निकलते हैं, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पे जो है अव्वाद, 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 ये निकाल के जब मोटा निकालिएगा अव्वाद, अव्वाद, तो ये सब जो है ये किससे निकलते हैं? तालु से निकलते हैं। तो ये दूसरा हुरूफ तहज्जी के निकलने की दूसरी जगह हुई। तीसरी जगह हुरूफ तहज्जी की निकलने की जगह क्या है? दांत से। ये जो दांत देखा, ये दांत से कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो दांत से निकाले जाते हैं, उनका मखरज दांत है। जैसे मिसाल के तौर पे जो है सा, ता, 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 ये और इसके अलावा और भी हुरूफ है, लेकिन ये जो है ये दांत से निकाला जाता है और इसका मखरज दांत है, ठीक। और चौथा हुरूफ तहज्जी निकालने की जगह जो है वह होंठ है। उसका मखरज क्या है? कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनका मखरज होंठ है, जो होंठ के जरिए निकाले जाते हैं। जैसे है बा, मीम, बा, बा, मीम। और इसके अलावा तो हम लोगों ने जान लिया कि मखरज कितनी जगह को कहते हैं और हुरूफ तहज्जी जो निकाला जाता है वो कितनी जगह से निकाला जाता है। तो नंबर 1 में है क्या चीज़? नंबर 1 में है हलक से, नंबर 2 में है, नंबर 2 में है तालु से, नंबर 3 में जो है, नंबर 3 है दांत से, नंबर 4 होंठ से। तो हम लोगों ने जो है मखरज को भी जान गया कि मखरज कहते हैं जिस जगह से हुरूफ तहज्जी को निकाला जाता है, ठीक। तो इल्म हिज्जा के अंदर हुरूफ तहज्जी और उसकी लिखावट और उसकी अदायगी के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, ठीक। अब जो मैंने बताया था कि हुरूफ तहज्जी की 2 किस्में हैं,
नंबर 1 में मुफरद हरूफ तहजी, नंबर 2 में मुरक्कब हरूफ तहजी। तो मुफरद हरूफ तहजी की बहुत सारी तादाद बताई गई है, कहीं पे 37 है, कहीं पे 38 है, ठीक, लेकिन आम तौर पे 36 लिखा जाता है। तो हरूफ तहजी की मुफरद जो हरूफ है वो 36 हरूफ है। अब कौन कौन से है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हरूफ तहजी की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मुफरद 36 हैं, यानी मुफरद हरूफ की तादाद 36 है। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, सीन, शीन, साद, वाद, ता, वा, गैन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाऊ, हे, हमजा, ये, ठीक। तो ये जो है कुल के कुल जो है ये 36 हरूफ है, कुल के कुल जो है 36 हरूफ है। अब देखते हैं मुरक्कब हरूफ को। यहाँ पे नंबर 2 में है मुरक्कब हरूफ, 15 हैं। मुरक्कब हरूफ यानी वह हरूफ जिनके अंदर जिनके साथ दूसरा हरफ मिल करके एक हरूफ बन जाता है। और दूसरा हरफ कौन मिलता है? तो सिर्फ एक हर्फ है जो हरूफ तहजी के साथ मिल करके एक हरूफ बन जाता है, वह है हे, यानी जिसको हम लोग कहते हैं दुचस्मी हे। तो यही दुचस्मी हे है जो दूसरे हरूफ तहजी के अंदर साथ में मिल करके एक हरूफ तैयार हो जाते हैं। उन्हीं हरूफ को मुरक्कब हरूफ कहते हैं जिनके साथ क्या है, दुचस्मी हे मिली हुई रहती है। तो वैसे हरूफ जिनके साथ दुचस्मी हे मिली हुई रहती है वो कुल के कुल 15 हरूफ है। अब देखते हैं, ये है भे, ये बे के साथ हे मिली हुई है। ये है फे, पे के साथ हे मिली हुई है। ये है थे, टे के साथ हे मिली हुई है। ये है ठे, टे के साथ हे मिली हुई है। ये है झे, जिम के साथ हे मिली हुई है। ये है छे, चे के साथ हे मिली हुई है। ये है धे, इसमें दाल के साथ हे मिली हुई है। ये है ढे, इसमें डाल के साथ हे मिली हुई है। ये है ड़े, आड़े के साथ हे मिली हुई है, तो इसको ढ़े पढ़ते हैं। ये है खे, काफ के साथ है मिली हुई है। ये है घे, इसमें गाफ के साथ है मिली हुई है। ये है लेह, ये लाम के साथ है मिली हुई है। ये है मेह, ये मीम के साथ है मिली हुई है। ये है नेह, ये नून के साथ है मिली हुई है। ये है वेह, ये वाव के साथ है मिली हुई है। तो ये जो है कुल के कुल जो है ये 15 हरूफ हैं, जिन हरूफ को हम लोग मुरक्कब हरूफ कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने जान गया कि इल्म हिज्जा कहते किसको है और इल्म हिज्जा की तारीफ़ और उसके अक़साम के बारे में भी जान गए। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और साथ में शेयर कर दे। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह आपको सलामत रखे।